Dear students, till now we have discussed about the different types of phylums. The first phylum that we discussed was Porifera, and the special feature of Poriferans was canal system. The second phylum that we had discussed was Coelenterata, and the special feature was presence of stinging cells which were known as nematocysts, as well as alternation of generation, that is metagenesis, which was changing from, that is altering between polyps and medusae. The third phylum was Ctenophora, and the special character was bioluminescence. Bioluminescence was the ability to radiate, the ability to emit the light. Next phylum we discussed was Platyhelminthes, which were also commonly known as flatworms. They were dorsally and ventrally flattened, and these organisms had specialized the flame cells which were for excretion, as well as they had presence of hooks and suckers, which were showing that in these platyhelminths will be which type of organisms? They will be parasitic organisms. Then comes Aschelminthes, which includes both free living as well as parasitic forms, and this is for the first time where the sexes were completely separate. And sexes were separate, and even sexual dimorphism was observed, right? The females are longer in size than the males. So that was about Aschelminthes. The next phylum we discussed was phylum Annelida. And phylum Annelida has the most special feature of body divided into segments, that is metameric segmentation, which was a characteristic of annelids only. So as you can see that each phylum, हम जो हर एक phylum के बारे में पढ़ रहे हैं वो हर एक phylum का कोई ना कोई special character, ठीक है? तो सबसे important यहाँ पे special character याद रखना है, और उसके बाद जैसे कि अगर first ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो याद आना चाहिए कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है? प्लैटीहेल्मिन्थस, राइट? अगर ऐसा है कि द ओनली सूडोसिलोमेट फाइलम, तो पता होना चाहिए इट इज एस्केलमिन्थस. अनदर थिंग, ऐसे फाइसेलिया ऐसा कहा गया है तो पता होना चाहिए दैट इट बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम? सिलेंट्रेटा. सो यू हैव टू प्रिपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द एग्जांपल्स बिलोंगिंग टू ईच फाइलम very properly, because the whole chapter includes only such type of phylum and classes. So in each of the phylum there will be some of the characters and there will be examples to prepare. So you have to prepare this thoroughly and you have to practice it. Only then you will be able to remember all those examples and all those characteristics. Otherwise you will mix all the characteristics together. Okay. So now we are beginning with the next phylum, which is the phylum Arthropoda. आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सारे ही इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. तो आप अपने आसपास कभी भी, इवन इन द रेनी सीजन, व्हेन यू ऑब्जर्व सराउंडिंग योरसेल्फ, यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बटरफ्लाई दिखता है, राइट? सम वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, सम विंग लाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट? मॉथ्स दिखते हैं, बहुत सारे कॉकरोचेस दिखते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग किसको करते हैं? दे ऑल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. सो फर्स्ट आई एम मेंशनिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट phylum and it includes, what does it include? All the types of insects. Okay, आप हनी बी ले लीजिए, मॉथ ले लीजिए, बटरफ्लाई ले लीजिए, all these organisms, all of them, they include to what? They are included as insects and they belong to the phylum Arthropoda. So phylum Arthropoda, about 2/3 of all known species on earth, known species on earth belong to phylum Arthropoda. So all the known species, जितनी भी known species हैं, जितनी भी species हमें पता है, उसमें से 2/3 स्पीसीज तो फाइलम, कौन से फाइलम में बिलोंग करती है? आर्थ्रोपोडा में ही. क्योंकि मैक्सिमम नंबर अगर किसी का है तो वो क्या है? इंसेक्ट्स होते हैं. एंड वी नो दैट ऑल इंसेक्ट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. इसीलिए अगर आसपास भी कितने भी ऑर्गेनिजम्स देख लें तो उसमें से मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंसेक्ट्स ही होने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट
What is the symmetry of these organisms? Habitat की बात करें तो habitat they are both, habitat में terrestrial as well as aquatic. Okay, क्योंकि इसमें spiders है, scorpions है, ये भी include होते हैं. तो some of them are in water, some of them are on land, but mostly क्या होता है, terrestrial होते हैं. Very few of them are even aquatic. Okay, so there will be terrestrial as well as aquatic, दोनों habitat हो सकते हैं. Symmetry, तो इनकी symmetry जो है that is bilateral symmetry. Body जो है वो two halves में divisible है. If you allow the plane to pass through the central axis, it will be divided into two equal halves. So body has a bilateral symmetry. Level of organization, obviously Annelida हमने already पढ़ा है कि Eskelminthus से सबका level of organization क्या है, organ system. So they will be having different types of organ systems in their body. There will be a complete digestive system, there will be respiratory organs, there will be excretory system, right? So they have well developed systems now. So organ system level of organization. तो habitat जो है वो terrestrial भी हो सकता है, aquatic भी हो सकता है. Symmetry जो है वो bilateral symmetry है. Level of organization, organ system level of organization. Germ layer की बात करें, so they are going to be triploblastic, 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. तीनों germ layers हैं. Xylem, so these are coelomate organisms. So xylem is present. तो germ layer में triploblastic है और xylem इनमें present है, इसीलिए coelomate organisms है. राइट तो हमने पहला लिखा कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड होते हैं वो सारे क्या है, इंसेक्ट्स होते हैं. 2/3 जितनी भी नॉन स्पीसीज है पूरे अर्थ पे, उसमें से मैक्सिमम 2/3 जितनी क्या है, दे ऑल आर आर्थ्रोपोडा ओनली. नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा का हैबिटेट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, सिमेट्री बाइलेटरल है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम है, जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलम में क्या है, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है ना. इफ यू टॉक अबाउट देयर स्पेशल कैरेक्टर्स, देन द आर्थ्रोपोड्स हैज presence of chitinous exoskeleton. What do they have? Chitinous exoskeleton. Chitinous मतलब chitin का बना हुआ, सबसे ऊपर का जो उनका कवरिंग होता है. अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो आपको ऊपर की सरफेस कैसे दिखेगी, शाइनी, राइट, शाइनी और स्मूथ सरफेस दिखती है. वैसे ही अगर आप स्पाइडर्स को देखोगे तो हर एक के ऊपर जो है थोड़ा एक हार्ड मटेरियल है और वो हार्ड रीजन क्या है, एक्सोस्केलेटन है. बट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट, काइटिन. सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. अगर हमें हमारा एक्सोस्केलेटन पूछा हो तो क्या आएगा, द हेड्स ऑन द बॉडी इज अवर एक्सोस्केलेटन. किसी के पास फर होता है एज एन एक्सोस्केलेटन, किसी के पास फेदर्स होते हैं विच हैव ब्रिसल लाइक काइटिनियस स्ट्रक्चर्स, दैट इज देयर एक्सोस्केलेटन. तो वैसे ही इनके पास क्या है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है जो बाहर का उनका कवरिंग होता है. अनदर थिंग इज दैट देयर बॉडी इज डिवाइडेड into, body is divided into head, thorax and abdomen. जैसे एनिलिडा में बॉडी वॉज डिवाइडेड इंटू मेटामेरिक सेगमेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट जिसे कहते हैं मेटामेरिक. वैसे यहाँ पे बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है. ये कोई भी इंसेक्ट, राइट, इवन यू कंसिडर एनी ऑफ द इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई ऑल्सो यू कंसिडर, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन और एनीथिंग, in all of them you will be able to observe 3 parts, head part, thorax part and the abdomen part. And they all have joint appendages. What do they have? Joint appendages. Joint appendages मतलब
अगर आप कॉकरोच के या किसी के भी लेग्स देखो तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, लाइक इफ दिस इज द कॉकरोच यू विल बी एबल टू सी लेग्स लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज जॉइंट अपेंडेजेस. मतलब ये जो पोर्शंस हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट. पूरा कंटिन्यूस हमारी तरह एक लेग नहीं होता. The leg is in smaller parts and all of them are connected to each other, and all of them, that is the first one, will be connected directly to the posterior side of the cockroach या कोई भी इंसेक्ट. तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है, जॉइंट अपेंडेजेस, एंड दैट इटसेल्फ इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा. पोडा मीन्स अपेंडेजेस और यू कैन से लेग्स और फीट, एंड आर्थ्रो मीन्स जॉइंट. तो जॉइंट लेग्स होते हैं और इसीलिए इस फाइलम को ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस है. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है दैट इज कंप्लीट. ओके, इवन इनमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स जैसी ग्लैंड्स भी होती है. तो कॉकरोचेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट ही है, माउथ है, एनस है, पर उसके साथ साथ देयर इज इवन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द एडिशनल ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट व्हिच विल बी फर्दर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डाइजेशन और हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, this was digestive system, circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी होती है ओपन. अब यहाँ पे याद रखना है क्योंकि एनिलीडा की सर्कुलेटरी सिस्टम क्या थी, क्लोज्ड थी. ठीक है, एनिलीडा हैड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड वाज कन्फाइंड टू फ्लो ओनली इन कैपिलरीज एंड हार्ट, whereas over here the blood will flow in the sinuses spaces. Moreover इनका जो ब्लड है वो रेड कलर का भी नहीं होता due to lack of hemoglobin. Okay, and they have only one or two types of specialized cells in their blood which help in the defense of the body. They don't have different types of RBCs and WBCs और इतना ज्यादा नहीं होता. थोड़े बहुत cells developed होते हैं which will be phagocytic type of cells, and phagocytic type of cells will be responsible for engulfing any bacteria or engulfing any substance entering into the body. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी होती है ओपन टाइप. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है इनके पास एक्वेटिक होते हैं तो गिल्स, किन किन के पास होते हैं बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम. अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. एक्वेटिक कंप्लीटली हो तो गिल्स होते हैं, या तो उनके पास बुक गिल्स होते हैं, ये गिल्स की तरह ही होते हैं, फ्लैट होते हैं. बुक लंग्स होते हैं जो जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं वैसे इनके पास फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बुक लंग्स कहा जाता है. या ट्रैकियल सिस्टम, कॉकरोच के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पर वो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो दैट इज प्रॉपरली फंक्शनल. इनका रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से नहीं होता, दैट इज बॉडी सरफेस से नहीं होता, इंस्टेड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ दे आल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. इनके पास क्या प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एंटीना, आईज एंड स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट जो है दैट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन. फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी दे हैव अ पोस्टीरियर टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्टैटोसिस्ट कहा जाता है. एंटीना, आईज, ये दोनों जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स है, और स्टैटोसिस्ट इज ऑल्सो अ सेंसरी स्ट्रक्चर which helps in balancing the body and helps in proper positioning of the body. तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम it includes Malpighian tubules. It includes Malpighian tubules which is there
एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब किसी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो हमने अर्थवर्म में पढ़ा कि मतलब एनिलिडा में पढ़ा कि उनके पास क्या है, नेफ्रीडिया। एस्केलमिंथिस में पढ़ा उनके पास क्या है, रेनेट सेल्स। प्लैटीहेलमिंथिस में पढ़ा उनके पास क्या है, फ्लेम सेल्स, right? So remember each of the term is different, each of the cell, each of the structure is different. So you have to remember all these. The excretory system में इनके पास होते हैं Malpighian tubules which are tubular structures that throw out the waste out of the body. तो Malpighian tubules इनके पास present है। तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली। देखिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो डाइजेस्टिव सिस्टम उनके पास कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है तो उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उनके पास गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम है। सेंस ऑर्गन्स में एंटीना है, आईज है, स्टैटोसिस्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ लास्ट सेक्सेस और रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट सेक्सेस आर सेपरेट, और सेपरेट सेक्सेस को क्या कहा जाता है, डाइशियस। सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स डाइशियस। मोनोइशियस मतलब सेक्सेस जब सेम हो, डाइशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। अनदर थिंग इज दैट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब within the body of the female organism the fertilization is going to occur. तो fertilization बाहर नहीं हो रहा पानी में, उसके जगह पे कहाँ हो रहा है, in the body of the organism itself. Okay, so fertilization is fusion of gametes. Reproduction जो होता है वो sexual होता है mostly. Reproduction is sexual and these organisms are mostly oviparous. Oviparous मतलब क्या ले करते हैं, एग्स ले करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स ले करते हैं, इस टर्म को कहा जाता है ओविपेरस। अगर डायरेक्ट यंग वन को बर्थ दे, जैसे ह्यूमंस में दे डोंट गिव राइज टू एग्स, दे गिव राइज टू द यंग वन, तो उसे कहा जाता है विविपेरस। यहाँ पे एग्स दे रहे हैं इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, ओविपेरस। ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है। तो लास्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम। तो इस फाइलम में कौन से एग्जाम्पल्स इंक्लूड होते हैं, तो सबसे पहले यू मे राइट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सम ऑफ देम आर वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब जो कैरी करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को और डिसीज पास ऑन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आएंगे सारे मॉस्किटोस, एनोफिलस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसीज कॉल्ड चिकनगुनिया, राइट। वैसे ही एनोफिलस का हमें पता ही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन विच डिसीज, पासिंग ऑन द डिसीज दैट इज मलेरिया। तो एक वेक्टर्स होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पेस्ट होते हैं। पेस्ट मतलब हमारी फील्ड्स को हार्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉकस्ट, लॉकस्ट इज वन सच एग्जाम्पल। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होते हैं जैसे कि हनी बी जिसे कहा जाता है एपिस, लैसिफर जिसे कहा जाता है लैक इंसेक्ट जिससे हमें लैक मिलता है, एंड थर्ड देयर इज ऑल्सो सिल्कवॉर्म जिसे कहा जाता है बॉम्बिक्स, और सिल्कवॉर्म जो होता है बॉम्बिक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सिल्क। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं। लिविंग फॉसिल है लिम्यूलस दैट इज किंग क्रैब। I want you to write the examples from your textbook and write properly. I have already discussed the examples. तो आप examples भी आपकी notebook में लिख दीजिएगा। And that is all about the phylum. आपको you have to remember what are the different types of systems present in phylum Arthropoda. Next we talk about the second largest phylum, phylum Mollusca.